Hello students, hope you all are healthy and welcome once again to my class. This video is for class 6 and today we'll continue chapter 5 of history, that is Vedic period and later Vedic period. In our last class we finished the topics of early Vedic period, in which we learned about the political life, social life, economical life, about dasas and the life of people during the early Vedic period. Now the later Vedic period. So this period is characterized by the composition of 3 Vedas. As I have told you that Rig Veda is the first Ved, or is the Ved which is composed during the early Vedic period. That's why early Vedic period is also known as ऋग वैदिक पीरियड. तो जो ऋग वेद है उसका जो संरचना है उसको कब लिखा गया था? अर्ली वैदिक पीरियड के दौरान. अर्लीस्ट वेद इज नोन एज ऋग्वेद. तो सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद. एंड द अदर 3 ones like Yajurved, Samved and Atharvaved is written during the later Vedic period. And along with these 3 Vedas, Yajurved, Samaved and Atharvaved, some other Vedic texts also composed during the later Vedic period. And what are the other texts, Vedic texts written during this period? Like Upanishads, Aryankas, and Upanishads, Brahmanas and Aryankas were written during early later Vedic period along with these 3 Vedas. And the epics such as the Ramayana and the Mahabharata were also composed during the later Vedic period. और कुछ हमारी जो होली बुक्स हैं हिंदूज की, जो कुछ सैक्रेड बुक्स, कुछ पवित्र किताबें, कुछ हमारे जो ग्रंथ हैं उनकी रचनाएं भी इस दौरान हुई थी, जैसे कि महाभारत एंड रामायण वर कंपोज्ड ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. एंड दिस पीरियड इज आल्सो नोन एज द एपिक एज बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपिक्स Mahabharata and Ramayana was composed during later Vedic period. That's why this period is also known as epic age. The events of Ramayana and Mahabharata is supposed to have taken from the later Vedic period. It's supposed to have been taken near the एंड ऑफ द लेटर वैदिक पीरियड. तो माना जाता है कि ये जो एपिक्स है हमारे महाभारत और रामायण, इसका कॉम्पोजिशन कब हुआ था? लेटर वैदिक पीरियड के एंड के दौरान. इसके एंड पीरियड के दौरान महाभारत और रामायण का कॉम्पोजिशन हुआ था, उसकी रचना हुई थी. नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज पॉलिटिकल लाइफ. नाउ what was the condition of political life of people during the later Vedic period? Now here we'll see some changes from early Vedic period to later Vedic period. कि early Vedic period के दौरान लोगों में क्या changes थे और later Vedic period के दौरान लोगों में के जीवन में क्या परिवर्तन हुए, क्या changes हुए. So many important changes took place during later Vedic period. And what are the changes? The first one is the small tribal states of the Rig Vedic period. जो छोटे कबीले वाले स्टेट्स थे, जो छोटे प्रोविंस थे, ट्राइबल प्रोविंस, ट्राइबल स्टेट, अब वो चेंज हो गए थे, रिप्लेस हो गए थे बाय पावरफुल स्टेट्स एंड gave way to rise of a large kingdom. और अभी ये स्टेट्स कन्वर्ट हो गए थे, रिप्लेस हो गए थे किसमें? एक बहुत बड़े राज्य में तब्दील हो गए थे, चेंज हो गए थे. They moved further to occupy the valley of the river Ganga and Yamuna. Now people moved to occupy the place of valley
रिवर गंगा एंड यमुना, यमुना और गंगा नदी के किनारे की जो जगह थी, अब लोगों ने उसको ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया था, वहाँ पे बसना या उन जगहों को यूज करना शुरू कर दिया था। एंड सेम एज इन अर्ली वैदिक पीरियड, द किंग वॉज द हेड ऑफ द किंगडम और द ट्राइबल स्टेट। जो राजा होते थे, किंग होते थे, वो ट्राइबल स्टेट के या किंगडम के हेड होते थे, मुखिया होते थे। एंड द फंक्शन ऑफ द किंग वाज टू प्रोटेक्ट द स्टेट और द किंगडम फ्रॉम द एनिमीज। अपने राज्य को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करना ही उनकी मेन जिम्मेदारी होती थी। द पोजीशन ऑफ किंग वाज हाईएस्ट इन द किंगडम। राज्य में जो सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती थी वो किंग की होती थी। एंड इट वाज हेरिडिटरी, मीन्स राजा का बेटा ही राजा बनेगा, ये वंशानुगत होती थी, किसी और को इसमें इलेक्ट होने की परमिशन नहीं थी। एंड किंग्स वर कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू ऑक्यूपाई द लैंड बाय विनिंग द वॉर फ्रॉम अदर किंग्स। और वो लगातार कोशिश करते रहते थे दूसरे राजाओं से युद्ध जीत के अपने किंगडम को और ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करते थे। एंड the king also strengthened his position by performing राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ एंड द वाजपेयी यज्ञ। तो ये कुछ यज्ञ होते थे, कुछ सैक्रिफाइसेस होते थे, कुछ रिचुअल्स होते थे जिनको परफॉर्म करके राजा अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी पावर को और ज़्यादा एक्सपेंड करते थे लोगों के बीच में, और ज़्यादा इसको बढ़ाते थे, दिखाते थे लोगों को। तो पहला जो है राजसूय यज्ञ। सो राजसूय यज्ञ वाज डन टू शो द सुप्रीम पावर ऑफ द किंग। राजा अपनी पावर को दिखाने के लिए इस यज्ञ, एंड दिस यज्ञ वाज डन टू कंट्रोल ओवर द लैंड, ताकि राजा अपना आधिपत्य, अपना कंट्रोल जमा सके लैंड पे। सो अकॉर्डिंग टू अश्वमेध यज्ञ, जिसमें हॉर्स को, घोड़े को छोड़ा जाता था और वो घोड़ा जितनी लैंड को कवर करता था वो अनलिमिटेड होती थी, मीन्स उसकी कोई लिमिट नहीं होती थी। जितना भी वो कवर करता था वो एरिया पूरा राजा के अंडर में होता था, किंग के अंडर में होता था ड्यूरिंग अश्वमेध यज्ञ। एंड द थर्ड वन इज द वाजपेयी यज्ञ। एंड वाजपेयी यज्ञ वाज अ चैरियोट रेस। एज आई हैव टोल्ड यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैरियोट? रथ। ये एक व्हीकल होता था 2 व्हील्स का, जिसको कौन पुल करता था? हॉर्स पुल करते थे। ये एक रेस होती थी, चैरियोट रेस, इन विच किंग वॉज द विनर। तो राजा का जो रथ होता था वही हमेशा जीतता था। एंड टिल लेटर वैदिक पीरियड द टैक्सेस कलेक्टेड बाय द किंग्स वर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड फॉर पेमेंट ऑफ कमांडर्स। जो टैक्स कलेक्ट होता था, लोगों से जो भी टैक्स कलेक्ट किया जाता था, उसको रोड बनवाने के लिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता था। साथ में जो कमांडर, जो सेना के लोग होते थे, उनकी पेमेंट भी इसी टैक्स से की जाती थी। नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज इकोनॉमिक लाइफ। हाउ वॉज द इकोनॉमिक लाइफ? लोगों की आर्थिक जिंदगी कैसे थी? वॉट वॉज द ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड? So the main occupation during the later Vedic period was also the agriculture, because till later Vedic period people occupied the area of Ganga and Yamuna valley also, and the land of Ganga and Yamuna valley was very fertile that time also. अभी भी गंगा और यमुना के पास की जो लैंड होती है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है। सो दैट टाइम ऑल्सो, इसलिए जो एग्रीकल्चर था वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका था, और एग्रीकल्चर ही उस समय भी मेन ऑक्यूपेशन था एज इट वॉज इन अर्ली वैदिक पीरियड। सो एन इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ टिलिंग द लैंड बाय डीप प्लफिंग। तो खेतों को जोतने का, टिल करने का नया मेथड आ गया था, इम्प्रूव्ड मेथड आ गया था बाय डीप प्लफिंग, मैन्योरिंग एंड सोइंग। अब लोगों को खेत को प्लफ करना, जोतना, मैन्योर करना, उसमें खाद देना एंड बीज को बोना आ गया था विथ बेटर सीड्स एंड वर यूज्ड टू गेट बेटर yield.
Now iron was used to make agricultural tools. Till this time iron was in use and it was used to make agricultural tools. आयरन को किस लिए मेनली यूज किया जाता था? एग्रीकल्चरल टूल बनाने के लिए, जैसे कि प्लफ बनाने के लिए. एंड वेपन्स, कौन से वेपन्स बनाए जाते थे? लाइक एरो हेड्स एंड स्पीयर्स. एरो हेड्स, तीर, एंड स्पीयर्स, भाले. उस समय में आयरन से ये सारे वेपन्स बनाए जाने लगे थे. एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल इन द फॉर्म ऑफ काउस वाज कंसीडर्ड एज वेल्थ. धन के रूप में, लोगों को वेल्थ के रूप में उस समय में कैटल रियरिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इन कैटल्स काउ वाज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल इन द फॉर्म ऑफ काउ. और डोमेस्टिकेशन भी किस कैटल के फॉर्म में? पशु के फॉर्म में, काउ was very important and was considered as wealth. And they used painted grey mud vessels. एक मड का ये वेसल, एक पात्र यूज करते थे इस समय तक. एंड अदर क्राफ्ट्स such as carpentry, leather making, metal work, jewelry. Apart from agriculture, these other occupations were also there, like carpentry, leather making, metal work, jewelry making, and chariot making also increased. The volume of trade and commerce was increased with the growth of civilization. और जैसे जैसे सभ्यता और ज़्यादा बढ़ी, लोगों में और ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, वैसे वैसे ट्रेड और कॉमर्स को, व्यापार को भी और ज़्यादा बढ़ावा मिला. Both inland and overseas trades were developed. So trade was not only inside the state, but it was from outside also और overseas also. मतलब हमने ना सिर्फ अपने देश के साथ व्यापार इस समय में चल रहा था, बल्कि दूसरे देशों के साथ भी ट्रेड स्टार्ट हो गया था. एंड ट्रेड वॉज कंट्रोल्ड बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट्स कॉल्ड पानी. और ट्रेड को, जो व्यापार था, उसको कंट्रोल करने वाला एक पूरा का पूरा ग्रुप था, जिसको उस समय में मर्चेंट्स, जिनको हम आज मर्चेंट्स कहते हैं, दैट टाइम दे वर नोन एज पानी. एंड मनी लेंडिंग वॉज ऑल्सो प्रैक्टिस्ड इन दिस पीरियड. इस समय तक मनी लेंडिंग की प्रैक्टिस भी शुरू हो गई थी. तो मनी लेंडिंग, कर्ज देना. नाउ here we finish our topic. Our next topic is social life of people during later Vedic period. So this topic will continue in our next class. Till then, read the chapter properly and complete your homework. Don't forget to give your attendance in the comment section. Write down your name, your class and your section. Thank you, class.